एक मिनट प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। There is no greater violence than to deny the dreams of our children. Slavery, trafficking, child labor, child marriages, child sexual abuse, illiteracy, these things have no place in any civilized society. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. My only aim in life is that every child is free to be a child. अंदर से तो अपना आदमी तोड़ रहा है ना, अंदर कुछ नहीं है। खोलो खोलो, ये तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बन रहा है बेटा? ये क्या बन रहा है? खिलौना है। ये खिलौना बन रहा है? और एक ही गांव में तुम लोग अलग अलग गांव के हो। At the age of 5.5, I saw a cobbler boy outside my school and asked to my teacher and headmaster, family members, and eventually the father of that boy, that why he is not with rest of us in school. People tried to convince me that it's very common, poor children have to work. That was the first spark, I would say, at the age of 5.5. During my student life and later on, I gradually understood that it is not simply poverty which pushes children to work at the cost of their education and freedom. I started thinking that it is denial of freedom and human dignity, and that is non-negotiable. When we freed children, I could feel that I'm freeing myself. We have freed more than 85,000 children by now. I have freed dozens of thousands of children myself in going in the most difficult, the most dangerous situations. But the joy was same. The joy was that I am freeing myself. एनसीसी गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। आप जानते हो कि भारत में हर घंटे में 8 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 5 बच्चे या 4 बच्चे मिलते ही नहीं हैं कभी। ये जो बच्चे भीख मांगते हैं स्टेशनों पर, ये जो बच्चे कहीं घर में गुलामी कर रहे हैं, कौन जानता है कि उन बच्चों को देश के किसी हिस्से से चुरा के लाया गया हो और दलालों ने उसको 5,000 6,000 में बेचा हो। अरे जिस समाज में बेटियां 10,000 रुपए की बिकें और भैंसें 2 लाख रुपए की बिकें, अगर आपको उस समाज के खिलाफ गुस्सा पैदा नहीं होता तो आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। बारबदुरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे जैसे चंद साथियों ने 103 देशों में 6 महीने तक एक यात्रा की और जिनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन है उसमें हम लोग गए
और छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कि हमें कानून चाहिए, बच्चों की गुलामी के खिलाफ कानून चाहिए। और आप सुन के हैरान होंगे कि सारी दुनिया की सरकारों ने 1 साल के अंदर स्वीकार कर लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। The first rescue operation in 1981 was at the brick kiln, freeing those girls, boys, women and men from the modern day slavery, the bonded labor system. And then I started receiving information from various sources about such people, such children, from stone quarries, from small workshops, farms, fields, other places. We wanted to focus on this because of the magnitude of the problem. Much more larger number of children are trafficked for forced labor than for sexual exploitation or forced prostitution. When we started freeing children, the very first challenge was that we had to take them in the night, how to feed them. And that began from the very first incident. So we had to depend on some friends to give some food for the same day or the next day until they are repatriated back. And then we have to look for some shelter in some places like some mosques or temples or churches, dharamshalas. But it was very, very difficult. People did not comfortably welcome those children. So we decided that let us begin with some place at least. That was the very first thing. The second thing was that freeing and sending them back home was not the complete solution. We have to ensure some education, a long-term rehabilitation. We had to fight with the government for some schemes so that the children could be rehabilitated economically, socially, educationally. I thought that they should be given a platform, a place where they can grow freely and express themselves and become the ambassadors, multipliers, leaders for the cause. चलो 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 उठ जाओ फटाफट चलो उठो उठो चलो उठो चलो उठो 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 चलो नमस्ते गुरुजी। मेरा नाम माया शंकर है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। पढ़ाई नहीं करता था, इस कारण मुझे मेरे मम्मी पापा फल की दुकान में भेज दिया। मुझे 300 रुपया महीना में मिलता था और इससे मैं जुआ खेल लेता था और दारू पी जाता था। पप्पू सर हमें वहाँ से छुड़ाया और उसके बाद में मुझे बाल आश्रम में लाया और बाल आश्रम में मैं पहले अनुचारी में 1 साल पढ़ा और अनुचारी में जब 1 साल पढ़ाई किया उसके बाद में मैं
कक्षा में, तीसरी कक्षा में सेकेंड आया था। और इसके बाद में मुझे स्कूल में एडमिशन हुआ और स्कूल में अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 5वीं कक्षा में। मैं बड़ा होकर के कुछ दूसरे जो बच्चे अभी तक बाल मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाल आश्रम के बच्चों की एक खासियत है कि उनके चेहरे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है, चमक रहती है। बच्चों में होती है एक झिझक होती है, वो मैंने बिल्कुल नहीं देखी। इनको किसी भी टॉपिक में कभी भी बोलने को कहा जाए तुरंत खड़े हो जाएंगे और तुरंत बोल देंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उनको ऑन स्पॉट बोलते हैं। मेरा पूरा खानदान है ना, ईंट भट्टा में ही रहते हैं। हमारा जो दादा उदा सारे ईंट भट्टा में रहे और मरे, तो वहाँ से हम है ना लाया गया। और लाने से और भी बच्चे थे, छोरा कुछ बच्चे थे, तो उनके साथ हम यहाँ आए। और तो जो शुरू में आए ना, तो मुझे इन सारे आश्रम को देख रहे थे ना, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा से कुछ है ना गलत हो गया, मारे देगा और देगा। धीरे धीरे हमें ना दोस्ती बनी और मैंने अच्छा से रहने लगा। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, क्योंकि है ना हमारे देश में लड़कियों को शोषण होता है, बाल मजदूरी कराते हैं, और भी हमारे देश में बहुत सारे बुराई, उनको मैं मिटाना चाहता हूँ। क्या हुआ? हाँ, लोहे में लगा कुछ। Whenever I come to Bala Ashram, it's like recharging the battery. कितना हो गए? The moment I free a child, the child is traumatized. He could not believe that he is free now. But after coming to Bala Ashram for a few days, the child starts feeling that he is free or she is free. So that realization of freedom is a great empowerment in itself. But witnessing it or watching it, even from the distance, is equally empowering. मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ आने से पहले मैं घर पे ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। अपने चाचा नहीं थे, वो मेरे मम्मी पापा को बोले कि इसी में ले जाता हूँ, काम भी सीख लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा। दिल्ली आए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते थे और हम लोग को काम करवाते थे हमेशा जड़ी का। जाकर मेरे भैया से ही बात करो। वहाँ पे मारते वारते थे खूब। अगर कहीं एक बार थोड़ा सा ऐसे नींद आ गई तो ये काट देते थे, थोड़ा सा डराते थे खूब। बच्चे कौन है? अपने यहाँ के छुड़ाए हुए भी बच्चे हैं कुछ इस गांव में? छुड़ाए हैं। कौन से? ये छुड़ाए हुए बच्चे हैं। ये अच्छा, ये तो और सब वहाँ पर। नमस्ते नमस्ते।
इसको बच्चे को पढ़ा रही हो कि नहीं पढ़ा रही हो? और पढ़ाओ। अगर तुमने इसको नहीं पढ़ाया तो हम इसको ही वापस भिजवा देंगे। तो छोटे वाले को पढ़ाओ। हाँ पढ़ाते हैं। जैसे बड़े को पढ़ाया है ना, बड़े को तो हम पढ़ा रहे हैं, इसको भी हम बड़ा होगा पढ़ा देंगे। लेकिन अगर काम धंधे में लगा दिया ना इसको, पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं कराएंगे इससे। इसको क्यों काम में लगाया तुमने? वो तो चाचा के पास गया था पढ़ने के लिए। सर इसको पढ़ाने के लिए भेजे थे, काम में नहीं भेजे थे, इसको पढ़ाने के लिए भेजे थे। तो वहाँ तो इन्होंने इसको गुलाम बना दिया। इतनी गरीबी है, देख ही रहे हैं। इंताज के माँ को ऑपरेशन जो हुआ तो 60,000 रुपया खर्चा हुआ, अब बाकी है नहीं। तो ई गांव वो गांव वो गांव वो गांव चंद मतलब भीख मांग के भिक्षा मांग करके उनकी इलाज किया है ना। तो वो अभी बची हुई है, न तो लास्ट में देखा कि दिमाग जलने के बाद में ये लड़का को हवाले जाओ तुम काम सीखोगे कि तो कुछ मजबूरी में से जान दिए मैंने, मजबूरी रहे। हमारा शौहर कमाने लायक नहीं था, बूढ़ा था तो कमाने लायक नहीं था। हम तो कहे छोटा बच्चा गदेल है तो इसलिए बच्चे को जाने दिया। हम अपने जाओ देहात के साथ हैं तो सोचा कि चलो अब गरीब आदमी है तो मजबूर है तो ले जाते हैं, इसलिए जाने दिए। कुछ शिक्षा खराब की वजह से भी बच्चा लोग न जाता है। हाँ, मास्टर भी कुछ हरवाई कर रहा है न, मास्टर भी अच्छा तरीके से बच्चा को पढ़ा लिखा न कर रहा है, न उसको खाना पीना ठीक से दे रहा है न। तो क्या करे, गरीब का बच्चा सब है, कोई इधर उधर भागता रहता है, कोई न पकड़ है न कुछ निशान है, क्या पढ़ पाएगा। इंताज कामयाबी हो जाएगा तो इनके साथ साथ और बहुत कामयाबी होगा। बाल आश्रम में सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और वहाँ मैं साथ में पढ़ाई करता हूँ अभी भी, और मैं वहाँ पे 85% मेरा बना और इस बार भी मैं सेकंड आया। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी बच्चे को काम करते हुए देखें कहीं पे भी तो उनको वहाँ से ज़रूर हटवाएं और उनको स्कूल में दाखिला करवाएं। अगर कहीं बच्चे काम करेंगे तो हमारे उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी वैसा ही रहेगा। मजदूरी बंद करो, मजदूरी बंद करो, हर बच्चे का है अधिकार, हर बच्चे का है अधिकार, हर बच्चे का। मैं शुरू से ही रही, हमेशा ही क्या ऐसा करती थी, घर का काम फटाफट निपटाया, बच्चे को लिया, ऑफिस पहुंच जाती थी। सक्रिय रूप से जब कोई मीटिंग होती थी या कुछ होता था उसमें ज़्यादा हिस्सा लेती थी। एक बार हम लोग नगर उटारी से एक यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी, उसी समय हमारे पास सूचना आई कि कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हुए गांव में कालीन के। जब हम गए तो मैं ये जो सरकारी एक महकमा नहीं होता कि वो पोलियो ड्रॉप पिलाने जाना है और वो है, तो रिसर्च के नाम पे हम 3-4 लोगों की टीम गई, 2-3 लेडीज़ और 1-2 लड़के। जब गांव में गए तो देखा तो सब लोगों ने हमें घेर लिया और ना ये इनके कैलाश सत्यार्थी के लोग हैं ये और वो। मैंने कहा कौन कैलाश सत्यार्थी? अच्छा वो कैलाश जो ये कालीन उद्योग से बच्चे छुड़ाता है, अरे वो तो बहुत ही खराब है। फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ अरे बच्चों को तो काम करना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद जब इनकी गाड़ी पुलिस के साथ आके रुकी और वो लोग हुए और एकदम से रेड करने के लिए अंदर, जब छापामार कार्रवाई के लिए अंदर घुसे तो दरवाजे तोड़ो ये वो, हम लोग भी इनके साथ शामिल हो गए। अब तो वो हमें ऐसे देख रहा है कि खा जाएगा जैसे हमें। हमने छुड़ा लिए बच्चे, 35 बच्चे छूटे थे शायद उस समय। एक आंदोलन हमने जर्मनी में शुरू किया और फिर अमेरिका में ले गए, यूरोप के दूसरे देशों में ले गए और ये मांग शुरू की कि उपभोक्ता जागरूक हों और बाल श्रम रहित कारपेट मांगें। और भारत, नेपाल और पाकिस्तान के गलीचा उद्योग के साथ मिलकर एक नई प्रणाली को शुरू किया उसने, और उसको रगमार्क कहते थे पहले, अब उसका नाम गुडवीव हो गया। गलीचा उद्योग में हमारा जो इंटरवेंशन रहा वो दुनिया में
एक नए आंदोलन का जनक हो गया। और उसी से फिर चॉकलेट में, कॉफ़ी में और चीज़ों में, कपड़ों में, जूतों में जो बाल मजदूरी दुनिया के किसी देश में भी चलती है, वहाँ पर उपभोक्ताओं के दबाव के परिणाम स्वरूप इस तरह के सर्टिफिकेशन के, मॉनिटरिंग के सिस्टम ईजाद हुए। अपनी फोटो ले लो तुम। अच्छा, उसकी ले रहे हो। Definitely, I love traveling in train, especially with my charming wife. And I could recall the very first travel actually after our wedding in Delhi. We had to travel to my hometown Vidisha. And the funny thing was that we did not have any reservation because that wedding date was imposed on me. So within few days, I have to marry. So without train reservation, we rushed in a train compartment and there was no seat. So the whole night, we were just sitting somewhere in the corner and finding our place, at least to touch each other. Now I can touch freely, but that was the funniest, the first train travel together. धरती की इसी मिट्टी की वजह से हूँ। ये पुरस्कार अकेले एक कैलाश सत्यार्थी को नहीं मिला, ये पुरस्कार दुनिया के हर एक बच्चे को मिला है, भारत के हर एक नागरिक को मिला है। और इस पुरस्कार के आप सब भागीदार हैं और आप सब एक दूसरे को बधाई दीजिए, मिठाई खिलाइए और कोशिश कीजिए कि हमारे देश से और दुनिया से बच्चों की गुलामी, बच्चों का शोषण, बच्चों पर अत्याचार का कलंक खत्म हो। हर बच्चा स्कूल में हो, हर बच्चा मुस्कुराता हुआ हो और हर बच्चे को आप गले लगा सकें। बोला तूने किवाड़ तोड़ दिया मैं हाथ के में। देखो तो रोटी बेलने वाले उड़सा रखे ये हमारे हाथ के बने हुए किवाड़ा देख लो। इतने अच्छे इतने बड़े उड़सा बनाए थे। एक समय में जब पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैं ये सीखा ना काम लकड़ी वकड़ी का, तो कब घर में किवाड़ बना लिए सारे। वो नहीं है हमारे हाथ के, ये हैं सिर्फ, ऊपर वाले भी हैं। बोले तुम आप मकान संभाल कर बोले आई ते मोड़िया जा जा। बहुत सुंदर, कमाल कर दिया भाई, कमाल। नहीं अब चले, अभी चले आ रहे हैं, CTI में थे हम लोग। चलो। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह। यही तो तेरे पिताजी हमारे सामने छोटे से थे और तू इतनी बड़ी हो गई कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही है। हम फिर मिल लेंगे उनसे। चलो चलो। 1969, when country was celebrating Mahatma Gandhi's birth centenary, there were a lot of talk against untouchability and social discrimination. So an idea came to my mind that we organize a feast. The food is cooked by the Cyprus women who were considered most untouchable and most excluded in the society. And those political leaders who were so good against this kind of social apartheid, let them come and eat food, and that will set an example for rest of the people in the town, in my hometown Vidisha. अच्छा, क्या हाल है पंडित जी? अरे ठीक हो? So somehow the food was cooked. The time was 7 o'clock in the evening, but it was 9 o'clock, almost 10 o'clock. Not a single person turned up.
So around 10:30, I sat down and started eating the food. And when I went back home, I found that there was some high caste, the priest was sitting in my courtyard, and everybody said that you have made such a crime today, a sin today. Now you are dirty because you have eaten food cooked by the suppressed women. These priests wanted to socially boycott or outcast my family. Later on, there was a kind of compromise that the boy is responsible, so boy should be sent to River Ganges to take a holy dip and come back home and organize feast for 101 Brahmins and touch their feet and wash their feet and drink some water drops. And I said, what nonsense, I will never do it, this is ridiculous. I refused. Then the decision was that the boy should be outcasted finally because he is not willing to purify himself. I was given a separate room in my house which opens on the street that was in the corner of my courtyard. I sat the whole night and I started reflecting in myself and trying to fight this untouchability and caste system. So an idea came to my mind that who are these people to outcast me? Let me outcast the entire caste system. And the most powerful or effective beginning could have been to remove the caste name or surname. So I decided to give up my caste name and or family name and found a new name for myself later on because I was too young, 15-year-old, so I could not do much that time and legally I could not do. But finally I gave a new name to myself and that is Satyarthi, and that means seeker of truth. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faisal. Happy birthday to you. My parents didn't give me a last name, as a statement against the caste system. So I only have just the one name, Asmita. And it was annoying as hell. But as one grew up, it was very different. I understood what it meant and what it stood for. And luckily, that is something that even I chose to believe in very, very strongly, perhaps even more strongly than they do. So it was a beautiful thing. I think it was the best gift that my parents could have ever given me, and that's something I'm very proud of, and that defines my identity, even today. पहले सुनो ये बताओ बच्चे जहाँ पर हैं ज़्यादा संख्या में वो कौन सी जगह है? 507 कौन सा ये 507 आखिरी में कितनी दूरी पर हैं? 10 मीटर अच्छा ठीक है। आज हम लोग दिल्ली में नागलोई की तरफ एक रेड करने जा रहे हैं। होता क्या है कि जरा सी भी अगर सूचना लीक हो जाए, किसी को पता लग जाए, तो जब हम पहुंचेंगे वहाँ उतनी ही देर में, मतलब गली के अंदर घुसते घुसते में भी बच्चों को पीछे के दरवाजे से निकाल दिया जाता है या कहीं और छुपा दिया जाता है। तो जब हम जाते हैं कई बार 50 बच्चों को आज़ाद कराने के लिए, तो हमें 5 ही बच्चे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी गायब करा देते हैं। हमें लगता है कि स्थानीय पुलिस के लोग इसमें जो सूचना देने में है, टिप ऑफ देने में है, खुद आगे रहते हैं। तो ये ख़तरनाक स्थिति है। देखो नज़र मारो कहीं पर गली वली के अंदर भाग रहे होंगे बच्चे, भगा दिया हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर हज़ारों बच्चे काम कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों। गली गली में आप देख सकते हैं कि जो मकान हैं, इन सारे मकानों में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। नीचे दुकानें हैं या मकान हैं, बीच में 3, 4, 5 मंजिल बने हुए हैं और सारे गैर कानूनी कारखाने यहाँ पर चल रहे हैं।
और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर जो हैं वो बिहार के और दूसरे इलाकों के बच्चे लाए गए हैं ट्रैफिक करके। ये सब बच्चे बंधुआ मजदूर हैं, बाल मजदूर हैं और बाल व्यापार के शिकार हैं। ये क्यों लेके आए हो इनको यहाँ पर? क्यों लेके आए हो यहाँ पर? मजदूरी कराने? तुम जानते हो कि 14 साल तक के बच्चे से काम कराना गैर कानूनी है? हमारा क्या नाम है? सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। इनको सबको आज़ाद किया जाएगा, इनके माँ बाप के हवाले किया जाएगा और स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम होगा। और तुमको जेल होगी अब, क्योंकि तुम बच्चों को लेके आते हो बहला फुसला के। तुम दलाली कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? जो बच्चे बंधुआ मजदूरी में फंस गए हैं, जिन बच्चों को बाल तस्करी करके माँ बाप से अलग रखा गया है, साल 2-2 साल 5-5 साल तक जो बच्चे अलग हो गए हैं माँ बाप से, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। तो ऐसी हालत से उनको उबारना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। को एहसास हो कि वो आज़ाद हो गया है, गुलाम नहीं है पहले की तरह वो। मेरा जो अपना दिल के करीब काम है वो मेरा बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है और मेरा जितना बन पड़ता है मुझसे उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बच्चों को देती हूँ। बच्चों को ये भी कह रखा है कभी भी कोई भी परेशानी यहाँ से जाने के बाद भी होती है, वो 10 बजे 12 बजे कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। चाहे अब बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, शादी में क्या परेशानी आ रही है, माँ की डेथ हो गई है कई बार, तो वो सब बच्चे मेरे से संपर्क में रहते हैं हमेशा। मैं उनका कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से उनकी समस्या सुलझाने की। ये क्या बनाया, क्या है, क्या बनाया? एक चिड़िया है। हाँ। और ये दोनों अपने दाना चुग रही नीचे की ओर। 6 5 4 3 2 1। बाल आश्रम में माता पिता से बढ़कर भी प्यार मिलता है। पहले मैं खेल नहीं सकता था, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था, किसी से मिल नहीं पाता था। बड़े बस सिर्फ सोचता था कि ये लोग होते हैं। लेकिन अभी जब से बाल आश्रम में आया हूँ तब से पढ़ाई किया हूँ, चीज़ों को समझा हूँ और ऐसे जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ सपना ही देखता था और वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं पढ़ा इतना क्लास तक, 10वीं तक। ये तो मेरे ख़ानदान के लिए और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आश्रम का रिकॉर्ड रहा है कि जितने बच्चे 10वीं में गए हैं सबका 80 से ऊपर परसेंटेज गया है और मैं चाहता हूं कि इस बार मैं 90 पार करूं, इसलिए अच्छे से तैयारी करूंगा, इसलिए मैं घर भी नहीं जा रहा। शुरुआत में मतलब काफ़ी शर्मीली प्रकृति का था। पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूँ कक्षा में सबसे टॉप वही कर रहा है, मतलब फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। और बोलने में मैं ये कहूँगा कि पूरी स्कूल में सबसे अच्छे स्पीक में सबसे अच्छा वही बोल रहा है। 10th बिल्कुल टॉप करेगा और मुझे उम्मीद है कि वो 90 क्रॉस करेगा, मतलब 90% से ऊपर उसकी परसेंटेज आएगी। इंग्लिश में विशेषकर सबसे अच्छे मार्क्स उसी के आ रहे हैं। सिर्फ माँ बाप आएंगे अंदर, बाहर आ रहे हैं। हाँ, आप लोग पीछे चलो हट जाओ। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए। आप बाद में बीच में नहीं, आप टॉर्चर कोई नहीं करेगा। कोई टॉर्चर नहीं करने आए हैं। शिकायत है उसकी जांच करें। शिकायत है तो जांच मालिक के सामने नहीं होती। आप हटिए। We really don't know. Let's go. He's got a broken leg. We need to go immediately. Let's go to Lucknow. Let's go to Lucknow first. आप उस गाड़ी. We have to look for the rest of the journalists, the rest of the people. Where are the mothers of the children? Several times there were occasions where I could have been killed
I lost Dhumdas, and I also lost another friend, Adarsh Kishore. One was shot dead, one was beaten to death. Almost all my senior colleagues were attacked or beaten up. And I was attacked many times. My son was attacked, my house was ransacked, looted, attacked. My office were burnt. All these things happen. But each time when it happens, I feel that I'm on right path. Those people who brought gun and put on my neck or sometime in front of me, I told that you can kill Kailash Satyarthi, very easy. But you cannot kill my resolve. You cannot kill the dreams which I have been able to generate in the eyes of many, many children whom I freed. My father was involved in rescuing some girls who were trafficked from Nepal. So they stumbled upon, a big criminal, and it became very ugly. We started getting threat calls in the house as well, and I would be the one taking the calls. And this is when I just started college, Delhi University, and we started getting these calls that the same thing will happen to her as happened to these girls. So the whole family was, quite scared, frankly, and, me being the youngest one, traveling alone in Delhi all the time, Then I was taken to the US, and in about a week, I pretty much packed up my life and went there for my undergraduate. हाँ ये है तो सही। अब जाओ तुम लोग जाओ, अपना काम करो, जाइए अपना काम करिए अपना। चलो ये चलो रो मत बेटा, रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, अम्मी अब्बू के पास पहुंचाएंगे। हाँ रो मत। अम्मी अब्बू के पास। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ बेटा, घर जाओगे ना अम्मी के पास? अम्मी की याद नहीं आती? अब्बू है बेटा? चलो आ जाओ, तुम इनको साथ में लाओ, आ जाओ। मालिक नहीं मिला। Now things are changing. When I started my fight against child slavery or human slavery back in 1981, it was very hard to convince the people that this is slavery. People thought that it is simply poverty and perhaps exploitation. But nobody wanted to listen the phrase like slavery. They said India is a free country. How can you talk of slavery? What nonsense you are talking about? You have become mad. अभी मिल जाएंगे काम कराना फैक्ट्री के अंदर गैर कानूनी करूंगा। अभी सारे बच्चे अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ रोड पे मिलने चाहिए। सबकी वीडियोग्राफी कराया हुआ हूँ, नामजद सबको FIR करूंगा। अभी एवरीबडी विल बी बिहाइंड द बार, सब जेल के अंदर होंगे। तुरंत बच्चे आ जाने चाहिए। अराजकता नहीं है, कानून का राज है। In India, we have very good laws about bonded labor system, slavery. We have much better law on child labor now. We have a very stringent law on child sexual abuse called POCSO. But when it comes to the implementation, enforcement of these laws, it's very lengthy. Can you imagine that a victim, a girl who has been abused today at the age of 12, would she be going along with her grandchildren to attend the court hearings that she has been sexually abused at the age of 12? This is a shameful situation. And this is also mockery on justice. So that's why we have to ensure speedy justice delivery mechanisms, and that needed proper infrastructure, that needed accountability of the judicial system, that needed some sort of compassion for such issues among the prosecution and judiciary. जैन मंदिर की साइड से काई वहाँ से दर्शन का वो नहीं होगा ना, मुझको भी ये वहाँ से नहीं, वो मतलब देखेंगे या उधर से देखेंगे तो मुझको नहीं होगा। आटे की वो बनवा क्या लोग? आटे का ठीक, सिंपल आटे से हो जाएगी।
So Ram Kripal ji is also a former bonded child laborer who was freed in 1983, and then he has been enjoying this Shanta class for last more than 25 years. Chalo, aa jao. नमक कम है, नमक डालो। Cooking is one of my favorite hobbies. So if I have some free time, I would love to cook different things in different ways. But of course, all are vegetarian. I love driving on the most difficult terrains in the country or anywhere in the world. That is also my other passion or my hobby. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। शाबाश। हाँ, इसका पता है ये मनन कौन है? इनको नहीं पता, मैं तो सुन चुका हूँ आपसे इनके हाँ, बारे में, लेकिन मुझे इससे पहली बार मिल रहा हूँ। ये मनन जो है, हाँ सुन चुके ना आप? He has been freed from Jharkhand. So since his childhood, he was working in mica mining. His best friend died there in front of his eyes due to this collapse in mining. He was traumatized for months or years. फिर उसको वहाँ से छुड़ा के लाया गया, and he stayed with us in Bala Ashram for how many years? I stayed there for 10 years. 10 years. He lived there for 10 years, and now he is the part of this Bala Ashram activity. He is doing his graduation in life sciences. Is it the first year or? No, this is the final year. Final year. चलो, बड़ा हो गया, तभी दाढ़ी है। तो ये हमारे साथ रहा है बच्चा हमारा, और क्लासिकल म्यूज़िक में इसका बहुत इंटरेस्ट था। सो ही लर्न, सुमेधा जी इसकी गुरु रही, लेकिन इसके बाद इसको यहाँ एडमिशन करा दिया। ये क्या है, गंधर्व विद्यालय में। सो गंधर्व विद्यालय से ये हो गया। When the Nobel announcement was made, I said that this is a comma in my life and not the full stop. I am using that opportunity to advance the cause. This year I have taken two major initiatives. One is the Laureates and Leaders for Children. The idea of Laureates and Leaders for Children came when I realized that Nobel laureates from all disciplines have tremendous moral authority, and so is the case of global leaders. Many of the former prime ministers and presidents and other leaders, they have great outreach and they earn a lot of respect. But when it comes to the cause of children who are in slavery or victims of trafficking, hardly one can see that they are engaged in it. With this idea that we have to
build a strong moral voice that cannot be ignored by any government or any international agency or any corporate should be formed. And the second one is 100 million for 100 million. They are complementary to each other, so that's why I decided to hold these two things together. Education! 100 million young people in the world are victims of multiple violence, vulnerabilities. On the other hand, 100 million young people who are in better off situations, they are eager to do something good for the society. Once they are sensitized, then they can ask their parents not to use domestic child laborers. As consumers, these young people can play a very important role and can definitely force the big brands and the local manufacturers to ensure that no child labor is involved in supply chains. They can also be strong forces to stop violence against children, and particularly the child sexual abuses. My name is Imtiaz. I am 16 years old. About 5 years ago, I was rescued by Bachpan Bachao Andolan from a garment factory in New Delhi. My story is not unusual. I was just one in millions of my brothers and sisters who never went to school, who never knew freedom. But today, I stand tall before the noblest of our leaders as the voice of those millions. I have questions. How much the longer are we to wait for no child to be enslaved? Let my freedom will be a weapon to fight for the freedom of my brothers and sisters. Thank you for coming here for us. इम्तियाज अब तो वो दूसरे बच्चों की मदद करता है। गांव में जाता है तो किसी का बच्चा ट्रैफिक ना हो, उसके लिए वो छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, उसमें घर घर जाता है। स्कूल में दाखिला कराने के लिए जाता है। समझाता है लोगों को कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, खासकर लड़कियों को। और जात पात और छुआछूत के खिलाफ लोगों को समझाता है, क्योंकि वैसे ही जीता है वो। मैंने कि बच्चे सब कह रहा है कि इम्तियाज भाई पढ़ रहा है, तो हम लोग के भी दिल कर रहा है कि पढ़ने के लिए। मैंने पहले से आज अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छा था। पहले था बच्चा था तो खेल कूद इधर उधर करता था। मुझे जब से वहाँ आश्रम में गए थे ना भाई साहब के साथ में, जब से बहुत अच्छा हो गया था। और वो भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करा रहा था। हम ऐसे मुँह रगड़ के मर जाऊँगा, भूखे मर जाऊँगा, मांग के खा लूँगा। मैं जब बच्चा वो अपने हक को आधा पढ़ाई के मामला में जी अपना वो पढ़ ले कि आगे भविष्य के लिए उनको कामयाबी रहेगा, उनको आने वाला को लिए वो कामयाबी अच्छा रहेगा। बहुत खुश वाली बात है। मिला नहीं है, डर लग रहा है। और भाई साहब ये
पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं? पढ़ाई भैया कौन सी क्लास में? 10th इस बार हो गया? एग्जाम दिया वहाँ। हमारा भी अभी रुका हुआ है रिजल्ट। CBSE का तो आ गया है शायद, इंटर वाला का है। RBSC है हमारा। जब मैं छोटा था और यहाँ से बाहर गया था काम करने के लिए, उस समय ऐसी माहौल नहीं थी हमारे गांव में कि सब बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। जब से मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा तो लोगों ने देखा, यहाँ के बच्चे ने भी देखा, और उसके बाद से बहुत बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं। और मेरे गांव के और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और कोई मेरे जैसा गुलामी की ज़िंदगी नहीं जिएगा। If we have to pay any tribute today for all those martyrs who sacrificed their life for freedom, we have to begin with our children who are not yet freed. They must be ensured their childhood back and education and opportunities. So it's a long struggle, but if we don't begin with the children, then we are not going to make this country a great country. देखो, अशिक्षा से भी आजादी दिलानी है, जात पात से भी आजादी दिलानी है, छुआछूत से भी आजादी दिलानी है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव फैलाते हैं लोग ना, उससे भी आजादी दिलानी है। और लड़कियों की, हमारी बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए, उनकी शादियां हो रही हैं जल्दी, कम उम्र में बाल विवाह हो रहा है, उससे भी आजादी दिलानी है। मैं